اگر آپ کو کیش ان ہینڈ رکھنا ہے, آپ کے بزنس کے ایکسپینسز ہیں, تو اب آپ کو ذرا ری ورک کرنی پڑے گی اپنی اوور آل فائنینشیلس کو, اپنی بکس کو, کیونکہ جو بزنس کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچرز کے لیے آپ اسپینڈنگ کرتے ہیں اس پہ لاگو ہو رہے ہیں نئے ٹیکسز. ایک طرف I just want to zoom out a little bit from just the headline کہ جی 50% ایکسپینڈیچر ایٹریبیوٹیبل تھا پہلے کیش سیلز کے اوپر, ایکسیڈنگ 2 لاکھ روپے پر ٹرانزیکشن, لیکن یہ اب ڈس الاؤ کر دیا گیا ہے. اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا از دا ریئل کویسچن. اینڈ اوور آل اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانا ہے, ٹیکس کی جو ریونیوز ہیں گورنمنٹ کے لیے ضروری ہیں اور اس کی کلیکشن بڑھنی ہے, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. پہلے ہم جو بات کرتے تھے کہ جی پاکستان میں انٹرپرینورشپ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے, لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹریڈ کریں, اپنا کاروبار کریں, کیونکہ ہمارے سسٹم میں اتنی زیادہ نوکریوں کی گنجائش نہیں ہے, یعنی وی ہیو ٹو بیکم جاب کریٹرز رادر دین جاب سیکرز. لیکن یہ جو اس قسم کے اقدامات لیے جا رہے ہیں, ڈو دا ٹو ویژنز گو ہینڈ ان ہینڈ؟ لیٹس ٹرائی اینڈ ایکسپلور دیٹ. ہمارے ساتھ موجود ہے خرم شہزاد صاحب, دا فائنانس منسٹر. بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا. سر, ایک طرف جو ویژن ہے اس میں ہم نے دیکھا کلیئرلی کہ دا فائنانس منسٹر ہیز سیٹ کہ ہمیں نہ صرف امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جانا ہے, ہمیں ایک ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بننا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکسیشن پالیسیز ہیں اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. مجھے بہت ساری خواتین نے کہا کہ آج خرم صاحب آئیں گے تو ذرا ٹیمو والا سیناریو بھی پوچھے. راتوں رات ای کامرس پہ اور ویسے شاپنگ کرنے کی چیزوں پہ بھی ٹیکسز بڑھ گئے ہیں. ہاؤ شوڈ وی ویو دس انٹائر سیناریو خرم صاحب؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. دیکھیں جو آپ نے 2 لاکھ روپے والی بات کی ہے کیش کی, تو اس میں ایک پرنسپل ہے جو کہ اکراس دا بورڈ اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس میں دیکھیں پرنسپل یہ ہے کہ کیش کو ڈسکریج کیا جائے اور ڈیجیٹل اکانومی کو جو ہے انکریج کیا جائے. اور اس کے اندر اگر آپ کیش کی اماؤنٹ دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے نارملی ہوتا یہی ہے کہ ہم بڑی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, ریٹیلرز ہوں, ہول سیل ٹریڈرز ہوں یا کوئی بھی چھوٹے کاروبار ہوں, وہ زیادہ تر کیش میں جو ہے ڈیل کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو ٹیکس کی جو اس میں بینیفٹ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کرتے یہ ہیں کہ جب آپ ٹیکس فائل کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کلیم کرتے ہیں کہ جی میں نے 100 روپے کی جو ہے وہ سیل کی ہے اور اس کے اندر 50 روپے میرا جو ہے وہ خرچہ ہے اور باقی 50 روپے میرا جو ہے وہ فائدہ ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو بیسکلی وہ جو 50 روپے ہیں, اب جو ہے 2 لاکھ روپے, اگر مثال کے طور پہ آپ نے 100 روپے کی سیل کی, اس میں 50 روپے ہم نے کیش الاؤڈ نہیں کیا ہے, تو اب جو 50 روپے باقی ہیں اس کے اوپر ٹیکس جو ہے آپ کا جو بینیفٹ ہوتا ہے کہ جی اپنے سیلز میں سے آپ ٹیکس خرچے مائنس کر کے ٹیکس کو جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے ڈسکریج کیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بینک کے تھرو جو ہے وہ ٹرانزیکشنز کریں. یہی پرنسپل آپ کو پتہ ہے اپلائی کیا ہے بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ بھی, کہ مثال کے طور پہ اگر آپ 50,000 روپے اگر نکلواتے ہیں, اس سے زیادہ نکلواتے ہیں انفیکٹ ایک ٹرانزیکشن میں ڈیلی, تو اس کے اندر آپ کو 0.3% جو ہے وہ فائلرز کے اوپر ٹیکس ہے اور نان فائلرز کے اوپر 0.6 ہے, ڈبل ٹیکس جو اپلائی کیا گیا ہے. اسی طرح سے ڈیجیٹل اکانومی کی آپ نے بات کی ہے, ای کامرس کی بات کی ہے, اس کے اندر بھی اگر آپ بینکنگ چینل کے تھرو جو ہے پیمنٹ کریں گے تو آپ کو ٹیکس کم لگے گا. تو پرنسپل خرم صاحب, if I may pause you right there, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ اگر کارڈز کی بات کرتے ہیں, ڈیبٹ کارڈز, کریڈٹ کارڈز کو ہم کرتے ہیں, ٹوٹل لوگوں نے کہا کہ جی ایک تو بینکنگ سیکٹر ویسے ہی 20% لوگ بینک اکاؤنٹس رکھتے ہیں, اس میں بھی پاپولیشن میں زیادہ تبدیلی نہیں آ رہی. کارڈ ہولڈرز اس سے بھی کم ہے, چند کچھ ہزاروں میں ان کے نمبرز قرار دیے جاتے ہیں. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوائنٹ آف سیل پہ اگر آپ پہنچیں اور اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر رہے ہیں, اگر بڑی پیمنٹ کرنی ہے تو باقاعدہ جو آپ کا ریٹیلر ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی اس پہ ٹیکس آپ کو مزید میں ایڈ کر کے دوں گا بیکاز دس ٹیکس آئی ایم ناٹ بیئرنگ. ہمارے پاس یہ ٹرینڈز موجود ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ترقی یافتہ ترین ممالک میں بھی دیکھا جائے کہ جہاں جہاں آپ ٹیکس کی مد اگر بڑھائیں گے کہ جی ٹرانزیکشن پہ بھی ٹیکس دینا ہے, اور اگر آپ بینکنگ سسٹم میں آئیں تو ہم کیش کو ڈسکریج کر رہے ہیں, unfortunately اس کا الٹا امپیکٹ ہوتا ہے. people are more inclined to go for cash transactions because they want to stay off the system. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک کیچ 22 کریٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں میں اس بات سے آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ٹیکسز کا انسیڈنس اوور آل کم ہونا چاہیے, ٹیکسز کی شرح میں بھی کمی ہونی چاہیے اور نمبر آف ٹیکسز بھی کم ہونے چاہیے. اوور آل برڈن اکانومی پہ ٹیکسز کا کم ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں گیون دا سچویشن ہم ایک فنڈ پروگرام میں ہیں اور ہمیں ٹیکسز کو بھی مینٹین کرنا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم
कैश को भी डिस्करेज करना है, एट द सेम टाइम हमने अपनी डॉक्यूमेंट भी करनी है इकोनॉमी को, उसके साथ साथ हमने टैक्स को जो है जितना हमारे पास रूम है, यानी कि जितना गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास फिस्कल रूम है उस हिसाब से टैक्सेस को इम्पोज करना है और कम करना है बेसिकली। तो देखिए आपने जो बात की है उसमें दो चीजें हैं। जी जी आप फरमाइए। देखिए उसमें दो चीजें हैं, आप जो बात कर रही हैं वो कंजम्पशन टैक्स की बात कर रही हैं, वो डेफिनेटली पास ऑन होता है, वो कंज्यूमर ही अल्टीमेटली जो है वो बेयर करता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो इनकम टैक्स की, विथहोल्डिंग टैक्स की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर भी आप अगर 2 लाख की जो हम बात कर रहे थे शुरू में, उसके अंदर एक्चुअली कंजम्पशन टैक्स नहीं है, वो बेसिकली इनपुट, यानी कि जो मैं अगर सेल कर रहा हूँ उसके अंदर से मैं अगर एक्सपेंडिचर माइनस करके अपनी इनकम दिखा के उस पर टैक्स लगा रहा हूँ, तो उसमें जो आप इंक्लूड कर रहे हैं ना एक्सपेंडिचर्स को, उसमें कमी की गई है ताकि आप जो है कैश कम इस्तेमाल करें और बैंकिंग के थ्रू जाएं ताकि आपको टैक्स का बेनिफिट हो। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जो मैं कार्ड का भी मैंने हवाला दिया, एक तो मैं एक जनरल समाजी रवैये की बात कर रही थी, और दूसरा ये कि वो जो सेल कर रहा है, जो चाहे वो एक सुपरमार्केट है या एक सैलून है या कोई कारपेट की दुकान है जो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने का पॉइंट ऑफ सेल रखता है, मैं उसके अपने टैक्स देने की बात कर रही हूँ। वो अगर उसने 100 रुपये की सेल की है, वो बड़े आराम से बायर को कह देता है कि जी अगर आप कार्ड से पे करेंगे तो 102 रुपये लगेंगे और मैं आपके कार्ड पे 102 ही चार्ज करूंगा। मेरा उसकी तरफ इशारा था। अच्छा ये टैक्स नहीं है, ये टैक्स नहीं है, ये बेसिकली होता क्या है, मैं दोनों चीजें प्लीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो आप 102 रुपये की बात करें ना, 2%, 2.5%, ये बेसिकली बैंकिंग फी होती है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये रिटेलर को नहीं चार्ज करना चाहिए, क्योंकि ये होलसेल लेवल पे होता है या बहुत बल्क में बाइंग हो तो उस पे होता है, क्योंकि बैंक जो है अपनी एक कमीशन ऑफ कोर्स चार्ज करता है उस पर, जो कि 2% होता है, 2.5% होता है, 1.5% होता है। ये बेसिकली ऑफ कोर्स स्टेट बैंक को और बैंकिंग चैनल्स को और उनको ये देखना चाहिए डेफिनेटली कि क्यों रिटेलर चार्ज कर रहा है। क्योंकि देखिए पंजाब में और 1-2 और सूबों में आप देखें, खासकर पंजाब में, कि अगर आप कार्ड के थ्रू पे करते हैं तो आपको सेल्स टैक्स में बहुत सब्सटैंशियल कमी होती है। मिसाल के तौर पे आप पंजाब में किसी रेस्टोरेंट पे जाएं, वहाँ कार्ड के थ्रू पे करें तो आपको जो सेल्स टैक्स है अगर 18% है उस पे, तो वो कम होके 5% हो जाता है। तो ये देखें एक तरह से, और इसमें लोग बड़े इंक्लाइन हुए भी हैं। आपको पता है कि पंजाब में खास तौर पे जब ये इतना बड़ा फर्क दिया गया है तो लोग कार्ड की तरफ आए हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर कोई कार्ड भी नहीं बनवा सकता और हर कोई जो है वो ये मेक श्योर नहीं कर सकता कि रिटेलर, एट टाइम्स तो ये होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि रिटेलर जो है वो आपको कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो कहता है कि कैश दे मुझे, कहता है मशीन ही नहीं है मेरे पास या मशीन चल ही नहीं रही है। खुर्रम साहब मुझे बताएं कि इस दफ़ा प्रॉमिस किया गया कि जो सैलरीड क्लास है उसको रिलीफ मिलेगा, और हमने देखा कि बजट में नए टैक्सेस नहीं थे। लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ डायलॉग्स भी किए मैंने और कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से जस्ट टू गेट द पल्स ऑफ द इकोनॉमी बात की। उन्होंने इसको आई वाज सरप्राइज एंड परहैप्स आपकी नज़र से गुजरा हो, अ वेरी रेप्यूटेड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, उनके साथ जब मेरी कॉन्वर्जेसन हुई, उन्होंने इसको ही कॉल्ड इट एन एनॉमली ऑफ सिंक, कि ये एक सिर्फ एक इल्यूजन दिया जा रहा है कि हम इन सिंक्रिसिटी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा नए टैक्सेस इसलिए नहीं लगे क्योंकि नए टैक्स लगाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, हम सुपर टैक्सेशन पे ऑलरेडी जा चुके हैं। आपका क्या रद्द अमल होगा इस स्टेटमेंट पर? अच्छा, पहले तो आपने जो सैलरी क्लास की बात की है तो वो तो आपको पता है कि रिलीफ तो दिया गया है। हाँ। और ये डिबेट की जा सकती है कि कितना रिलीफ है, कितना होना चाहिए और कितना होना चाहिए था, इस पे डिबेट हो सकती है। बट देखें डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी अब आप पाकिस्तान में आप जरा देखें ना, उठा के हिस्ट्री उठा के देखें कितनी मरतबा टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और उनको कम किया गया है। 10 साल में तो पिछले एटलीस्ट नहीं हुए होंगे। और उसके अलावा आप वैसे देखें कि सैलरी क्लास की इनिशियल जो स्लैब है उसके अंदर पहले 5% टैक्स था, आज 1% हो गया है। और वो सिर्फ ये इस तरह से है कि 1 लाख रुपए तक जो कमा रहा है सैलरी क्लास रजिस्टर्ड, उस पे 500 रुपए टैक्स है महीने का, सिर्फ 500 रुपए। और उसके अलावा आप पूरे उसको स्लैब्स को आगे देखती जाएं तो उसमें अकॉर्डिंगली कमी आई है। दूसरी बात, सुपर टैक्स की आपने बात की, उसमें भी 0.5% की कमी करने की कोशिश की गई है, बल्कि दिया गया है 0.5%। लेकिन आपकी बात सही है कि टैक्सेस का जो हुजम है
उसमें किस क्वांटम पे कमी होनी चाहिए वो बिल्कुल जो है इस पे डिबेट हो सकती है। बट देखिए डायरेक्शन खुर्रम साहब, आई रियली लाइक योर स्टेटमेंट जब आपने कहा कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल हमें देखना चाहिए, और ख़ास तौर पे क्योंकि देखें हमने जब बजट को कवर किया हमने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हम हर बजट में सुनते हैं, हम कहते हैं कि जी लाइफस्टाइल और आपकी टैक्सेशन मैच करनी चाहिए। अगर आप एक शाहाना ज़िंदगी रखे हुए हैं तो आप उसी हिसाब से टैक्सेस दें, लेकिन एट द सेम टाइम एक एस्पिरेशन एक इकॉनमी में ज़िंदा रहनी भी बहुत ज़रूरी है। जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है वो लोअर मिडिल क्लास का मिडिल क्लास की तरफ और मिडिल क्लास का अपर मिडिल क्लास की तरफ होता है। लेकिन इस वक्त जो हमारी टैक्सेस की हालत है, जो चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल और हमारे दस्तरस में भी थी, अपर मिडिल क्लास बेचारा ये सोच रहा है कि दे आर बीइंग पुश डाउन, वो चीज़ें भी उनके हाथ में नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई साल में एक दफ़ा बिज़नेस क्लास ट्रैवल अफोर्ड कर लेता था, अब वो नहीं कर पा रहा। और बाकी चीज़ों में भी इसी तरह ऐसा लग रहा है कि वी आर फोर्स टू डाउनग्रेड आवर लाइफस्टाइल। इस पे मैं चाहूँगी कि आपका फाइनल कमेंट हो कि हम हमेशा प्रो पुअर बजट की बात करते हैं, हम एलीट को या रिच या वेल्दी क्लास को टैक्सेशन के मद में लाने की बात करते हैं। वेयर आर द प्रो मिडिल क्लास पॉलिसीज़ ताकि हमारी मिडिल क्लास ग्रो करे? बिल्कुल सही आपने फरमाया है, और ये पूरा जो हमारा एक ट्रेजेक्ट्री रहा है बिल्कुल इसी तरह से रहा है। और देखें एक बजट या दो बजट में करना ये मुश्किल होता है। हम एक तो ये आपको पता है हम फंड प्रोग्राम में हैं, तो उनके साथ फंड के साथ हम डिस्कशन करके एक कंसेंसस क्रिएट करके फिर आगे बढ़ते हैं। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए मैं एग्री कर रहा हूँ इस पे कि बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत काम करने की ज़रूरत है, और हमें मिडिल क्लास को ऊपर लाने की ज़रूरत है। हमें इवन जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स में जितना जल्दी हो सके उनको ऊपर लाने की ज़रूरत है, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है। और कैसे होगा वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के थ्रू होगा। और उसके अंदर 4-5 चीज़ें मैं जल्दी से आपको गिनवाता हूँ जिसमें काम हो रहा है, जिसमें ओवरनाइट ऑफ कोर्स रिजल्ट्स नहीं आते, बट अगर ये सस्टेनेबिलिटी आपको चाहिए और बेहतर ट्रेजेक्ट्री चाहिए, अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री, तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसमें राइट साइजिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है, पेंशन रिफॉर्म्स हैं, प्राइवेटाइजेशन है, उस पर काम हो रहा है। उसके अलावा एनर्जी का आप देखें प्राइसेस थोड़ी कम की गई हैं, मजीद कमी की तवक्को है आगे। तो 3-4 चीज़ें, इंटरेस्ट कॉस्ट यानी कि शरह सूद, टैक्सेस में कमी, और आपकी जो है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और साथ साथ जो है एनर्जी की कॉस्ट में कमी, ये सब चीज़ें अगर कम होती जाएंगी और कंटिन्यूटी रहेगी, आप देखेंगी कि जो आप बात कर रही हैं ये आहिस्ता आहिस्ता रूट्स पकड़ना शुरू हो जाएगा, और हम इंशाल्लाह एक उस ट्रैक पे चढ़ जाएंगे जहाँ पे हमें चढ़ना चाहिए, जो हमारा पोटेंशियल है। खुर्रम साहब, आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू हियर दिस, और उम्मीद यही है कि हम इसी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को, इसी विजन को आगे लेकर चलें। देखिए हालिया जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जो सिनेरियो रहा है, उसमें पाकिस्तान की जो स्ट्रेटिजिक और जियो पॉलिटिकल स्टेटस है वो बड़ा क्लियरली हमारे सामने आया है। पाकिस्तान के पोटेंशियल की बहुत बात की जाती है। आवर मोमेंट इन हिस्ट्री हैज़ कम, नाउ इट इज़ अप टू अस कि हम वो पॉलिसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वी आर एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पाकिस्तानी इकॉनमी राइट नाउ इज़ रिस्पॉन्डिंग लाइक एनी इकॉनमी दैट इज़ इन अ फंड वुड, लेकिन इसको अपने एडवांटेज में कैसे इस्तेमाल करना है, दैट इज़ येट टू बी वर्कड ऑन एंड सीन।